Students, today we study the first chapter of the biology of interclass, and it is for the new students now, which is promoted in the interclass. The name of first chapter is the homeostasis. Homeostasis is the Greek word which arises from the two words homeo and status. Homeo means similar or unchanged, means constant, and status means the stable, and the regulate. Like the some functions of our body, or the many functions of our body, or the all functions of our body are constant, like the heart beating, heart rhythm, and the respiration, and the temperature of the body, and the excretion. These are constant in our body. If the temperature are raised, then we call it the fever, and our body temperature is 37 degrees centigrade. Now, what is the homeostasis? What is the important aspects of the homeostasis? Homeostasis actually a mechanism. It is the mechanism in which the internal conditions of the body are properly maintained and regulated, is called the homeostasis. Means the system of the body and the mechanism of the internal, all the systems or the conditions of body are maintained and continue, means regulated, means the maintain the temperature and regulate the temperature, maintain the heart beating and regulate the heart beating, maintain the sweating and regulate the sweating. It is called the homeostasis. The important aspect of homeostasis are following. Now, in the homeostasis, the constant functions of our body are the number 1, osmoregulation, number 2, excretion, and number 3, thermoregulation. Now, osmoregulation is also the Latin word which arises by the combination of two words. Osmo means approach, or osmo means the osmosis or the osmotic pressure, and regulation means regular or the regulate. Now, what is osmosis? Osmosis is the like the diffusion process, but in osmosis the semi-permeable membrane are used, and when the entrance of the solute and the solvent, and the balancing of the solute and solvent, and the transmission by our cell and the cell membrane is performed the function of the barrier, so is called the osmosis. When the membrane is used in the diffusion, then this diffusion will be converted into osmosis. Now, osmotic pressure of the cell. बेटा यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन का मायना ये है कि ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस किसे कहा जाता है? डिफ्यूजन, जैसे एक गिलास पानी में आपने अगर एक ड्रॉप इंक का डाल दिया है या रॉबिन नील का डाल दिया है, तो वो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होगा और आखिरकार आपके बगैर उसको हिलाए, स्टिर किए बिना जो है वो उसके अंदर हल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो डिफ्यूजन है। लेकिन अगर हम किसी बैरियर को यूज़ करेंगे, किसी मेम्ब्रेन को यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा? ऑस्मोसिस बन जाएगा। जैसे अगर आपने चीनी को एक छोटे से मलमल के कपड़े में बांध के उसकी थैली सी बना के और गिलास में डाल दिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीनी हल होती जाएगी। तो ये प्रोसेस, क्योंकि शुगर को हमने वैसे ही ऐड नहीं किया बल्कि हमने उसे एक मलमल के कपड़े में डाल दिया है, तो ये क्या कहलाएगा? ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। इसी तरीके से क्या? ऑस्मोसिस कहलाएगा ये। इसी तरीके से क्या है कि हमारी बॉडी में जब किसी भी चीज़ की एंट्रेंस होती है और वहाँ से कोई चीज़ खारिज हो रही है, स्वेटिंग वगैरह, हर सेल ये काम कर रहा है और हर सेल के एनवायरनमेंट में बाहर में सराउंडेड बाय किससे है? सेल मेम्ब्रेन से है। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? वो परमेबल होती है,
लेकिन सेमी परमेबल होगी, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं और कुछ नहीं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन के जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में, जो फ्लूइड्स हैं, जो वाटर है, जो सॉल्यूट हैं, जो सॉल्वेंट है, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना और कंसंट्रेशन को बिल्कुल भी कम ज़्यादा ना करना। जैसे हम कहते हैं कि चाय में मीठा तेज़ हो गया है, चाय में मीठा कम हो गया है, या हमने जो स्क्वैश बनाया है या हमने जो जूस बनाया है कि इसमें मीठा ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो हमारी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारी बॉडी, आप देखिए, हमारा ब्रेन इसको मेंटेन रखता है, मेंटेन रखने की कोशिश करता है और मेंटेन रखता है और उसको फिर मेंटेन करके रेगुलेट कर देता है। तो देखिए इसमें क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल determined by the water and the solute concentration is regulated। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? एक खिंचाव सा पैदा हो जाता है और वो प्रेशर क्या होगा, उस प्रेशर से पोर्स जो है वो किसी चीज़ को अंदर नहीं आने देंगे और ना ही बाहर जाने देंगे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। नाउ सेकेंड इज द एक्सक्रिएशन। एक्स मीन्स सिफ्ट आउट, सिफ्ट नॉट शिफ्ट, सिफ्ट आउट मीन्स छानना। Now this is the process. X means, we underline this word extra. Extra means the toxic substances which are present in our body. Excretion actually is a process. Excretion actually is a process by which the different toxic substances or extra substances which are unwanted or cannot be need our body and are the harmful our body are excrete out and removed from the body is called the process of the excretion। यानी आप बेटा समझ गए होंगे कि एक्सक्रिएशन क्या है। कि एक्सक्रिएशन एक वो प्रोसेस है जिसके तहत जो सब्सटेंसेस होती हैं, वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं, वो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं। तो ये एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए क्योंकि ये टॉक्सिक हैं यानी जहरीली हैं, तो इन्हें बाहर निकलना है और रिमूव होना है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रिएशन कहा जाता है। जैसा कि हमारी किडनी हमारे ब्लड को फ़िल्टर करके जो मिनरल्स होते हैं उनको और साथ में क्या है सॉल्ट को, इसको अलग करके एक्सक्रेट करना, अलग करती है और यूरिन फॉर्मेशन कर देती है, यूरिन फॉर्म हो जाता है और उसके कॉम्बिनेशन को, कंसंट्रेशन को भी वो चेंज नहीं करती है, वो भी मेंटेन रखती है। इसके बाद है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स बेटा, थर्म मीन्स हीट और द टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स कंटिन्यू बी मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड। मीन्स इसमें हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस इन विच बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड। हमने आपको टेम्परेचर का पहले बता दिया, रेगुलेटेड अप टू अ सर्टेन सूटेबल लिमिट is called the thermoregulation। Means the limit of temperature in our body, you know about it, our body temperature is a 37 degrees centigrade and it is the constant temperature. When temperature raised, then we say to be fever। Now it is due to the thermoregulation process which is continue occurs in our body। Now after this, the फीडबैक मैकेनिज़्म एंड द फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम बेटा क्या है? फीडबैक सिस्टम एक मेटाबॉलिक पाथवे है। इसे आपने गौर से समझना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मंथ अगर गुज़र गया है, पूरा महीना आपका पूरा हो गया है और आपकी अम्मी हिसाब करती हैं कि हमारे पास इतना जो है वो मंथली इनकम था, इतने खर्चे के पैसे थे, उसमें से मैंने इतने खर्च किए हैं और इतने बच गए हैं और मेरा इस तरीके से बजट मेंटेन है, वो क्या हमें कहलाएगा? फीडबैक। यानी चेक एंड बैलेंस, पिछला चेक करना और आगे उसको मेंटेन रखना, ये फीडबैक। और हमारी बॉडी अब क्या करती है? हमारी बॉडी सारा प्रोसेस करती है और अपनी बॉडी के तमाम इन सिस्टम्स को जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, इनको ना सिर्फ पीछे जाके देख के आती है, उसके बाद वो आगे भी हिदायत करती है कि अभी तो मेंटेन है, पिछला भी मेंटेन था और आइंदा भी मेंटेन होना चाहिए। ये सारा काम हमारी बॉडी करती है, जिसे फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। मीन्स फीडबैक सिस्टम क्या है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द होम्योस्टेटिस।
means the internal condition of body will be remain constant and regulate. It is called the check and balance, and the other name of check and balance is the feedback system. Is the feedback system. Now feedback system having the three organs are involved in it. देखिए 3 ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं. इन्वॉल्व कैसे, अब ये मैं आपको उर्दू में समझा रही हूँ, आप मेरी बात को गौर से समझें. पहला होगा रिसेप्टर. रिसेप्टर होगा रिसीव करने वाला. रिसीव करने वाला रिसेप्टर कहलाएगा. अब रिसीव करने वाला ऐसे जैसे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को छूता है तो टच करता है तो आपको फील हो जाता है कि वो गर्म है, तो आपका हैंड क्या है, वो रिसीवर है, उसने रिसीव किया है. और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जब वो प्रॉब्लम में आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसको रिसेप्टर जिसने रिसीव किया था, रिसेप्टर उसको ट्रांसफ़र कर देगा ब्रेन को. ब्रेन को बताएगा कि भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ और ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है और गर्म चीज़ पर इस वक्त मेरा हाथ है. तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन मैसेज कन्वे करेगा फौरी तौर पर इफेक्टर को. अब वही हमारा जो हाथ रिसेप्टर था, अब जब वो दोबारा मैसेज रिसीव कर रहा है तो अब वो रिसेप्टर नहीं है. जब रिसीवर था तब वो रिसेप्टर था, लेकिन अब वो क्या है, वो इफेक्टर बन चुका है. तो हमारा ब्रेन उसको दोबारा से ये मैसेज करेगा और उसे कहेगा कि हाथ हटा लो, और हमारा ब्रेन के ऑर्डर पर हम हाथ हटाएंगे. आप ये समझें कि ये काम कितनी जल्दी होता है कि आपको अगर पीछे से किसी ने पिन ज़रा सी पिन टच की है, या हम किसी गर्म चीज़ हमें कुछ टच हुई है, तो हम 1 सेकंड में अपने आप को मूव करते हैं और हटा लेते हैं. उससे भी पहले हम खुद को हटा लेते हैं. तो ये सब किस तरह से हो रहा है, ये सब हमें ब्रेन से मैसेज मिलता है तब हम इसको हटाते हैं. तो वो देखिए कितना क्विक ये काम हो रहा है. इवन ये कि हमारी जो आई लैशेज़ हैं, पलकें हैं, उनको अगर हम ब्लिंक कर रहे हैं, झपका रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी हमारा ब्रेन ऑर्डर कर रहा है तो हम कर रहे हैं. हमारा कोई भी बॉडी का फंक्शन, अगर हमें स्वेटिंग हो रही है तो वो भी हमारे ब्रेन ने ऑर्डर किया है. तो बेटा इसमें आप ये समझें कि एक रिसेप्टर है, रिसीवर रिसेप्टर है, और रिसीवर ही क्या करेगा, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को, ब्रेन को, यानी उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, सेंट्रल कॉर्ड से इसमें सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है हमारे पास और ब्रेन आ रहा है. पहले मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा और उसके बाद ब्रेन के पास जाएगा. फिर क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ये फैसला करेगा कि ये मैसेज क्या इतना इम्पॉर्टेंट है कि मुझे ऊपर ब्रेन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास ये पावर होती है कि वो इसको सजेस्ट करेगा. और फिर अगर वो समझेगा कि ये इसकी नीड है, मुझे कन्वे करना है, तो मैसेज वो कन्वे करेगा और फिर ब्रेन उसको ऑर्डर करेगा और फिर हम अपने हाथ को हटाएंगे और ख़ुद को महफूज करेंगे. आगे आपको समझ में. तो रिसेप्टर क्या, रिसीवर है, और उसके बाद रिसेप्टर क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा ब्रेन को, और ब्रेन मैसेज करेगा, ऑर्डर करेगा. अभी देखिए आप इसको पढ़ें तो हमारे पास क्या है, नाउ रिसेप्टर्स दीज ऑर्गन्स रिसीव एनी चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, मीन्स रिसीव एनी चेंज इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. चेंज को रिसीव किया, यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म चीज़ ने हमें छुआ, तो कुछ भी चेंज हुआ जो हार्मफुल है हमारे लिए या सूटेबल है, कुछ भी है, वो फ़ौरन उसने शिकायत लगानी है और जाके ब्रेन को कहना है कि बाबा ऐसा हो गया है. नाउ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम द रिसेप्टर ट्रांसफ़र मैसेज टू द कंट्रोल सिस्टम सच एज़ द ब्रेन इन एनिमल. आप देखें, आप अगर आपको टेम्परेचर है तो ये ना समझें कि आप टेम्परेचर में पढ़ने बैठी हैं, आपको नहीं याद होगा, इम्पॉसिबल, आप याद कर ही नहीं सकती हैं. क्यों? क्योंकि ब्रेन को मैसेज मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा. उसे किडनी मैसेज दे रही है, हर सेल उसे मैसेज दे रहा है, उसे हार्ट मैसेज भेज रहा है, हर एक उसे पल पल मैसेज भेज रहे हैं कि बाबा हम प्रॉब्लम में, हमें ठीक करो, कुछ करो. तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन ऑर्डर कर देता है, बॉडी को कहता है कि सब सेल्स को कह देता है, स्किन वाले सेल्स को, कि स्वेटिंग करो. तभी आपको एकदम पसीना आना शुरू हो जाता है. पसीना आएगा, फिर उसके ऊपर हवा पड़ेगी, तो जैसे ही आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, फिर ब्रेन जो है वो रिलैक्स, जब तक ब्रेन रिलैक्स नहीं रहेगा जब तक वो सब कुछ मेंटेन नहीं कर देगा. तो अगर आप उस टाइम उसके ऊपर लोड डालेंगी, जब वो और काम कर रहा है, आप उसे याद करने को कहेंगी, तो वो आपको ये कहेगा कि बाबा मुझे टाइम नहीं है, अभी मैं कुछ भी सेव नहीं करूँगा, अभी मैं खुद ही प्रॉब्लम में, मुझे दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करने दो. ब्रेन ये जानता है मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी के फंक्शंस हैं और याद करना बात की बात है.
इसलिए अगर आपको कभी टेम्परेचर हो तो आप पढ़ने की कोशिश ना करो, आप आराम से टैबलेट लो और चाय पियो और उसके बाद लेट जाओ, रेस्ट करो, टेम्परेचर रिमूव हो, उसके बाद पढ़ो। नाउ देखिए इसमें क्या है, उसने क्या किया, रिसेप्टर ट्रांसफर द मैसेज टू द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम मीन्स ब्रेन। नाउ ब्रेन गिव्स ऑर्डर। नाउ इफेक्टर, फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम मैसेज इज ट्रांसफर टू द पर्टिकुलर ऑर्गन। पर्टिकुलर ऑर्गन मीन्स अगर हैंड है वो गर्म चीज़ को टच कर रहा है तो हैंड को, अगर फीट है उसमें कोई कील चुभ गया तो फीट को, अगर बॉडी है तो बॉडी को, यानी उसने पर्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज करना है, पूरी बॉडी को नहीं। कॉल द इफेक्टर, अब वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो उसमें इन्वॉल्व है, वो जो मजलूम है वो क्या, वो इफेक्टर है। इट टेक पार्ट इन द पर्टिकुलर एक्शन विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द सिस्टम प्रॉपरली। अब वो पर्टिकुलर क्या करेगा, एक्शन लेगा जिससे जो नेसेसरी होगा, बहुत ज़रूरी होगा, जिससे कि सिस्टम प्रॉपर हो जाएगा। वो कौन एक्शन लेगा, वो एक्शन ब्रेन लेगा। स्टूडेंट्स आपको ये याद हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये तो हमारी बॉडी का फंक्शन है। हमने यहाँ ऊपर लिखा है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक यानी हमारी बॉडी में जो फंक्शन होता है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑलवेज अकर्स इन आवर बॉडी। मीन्स मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑन टू पार्ट, एनाबॉलिज्म एंड द कैटाबॉलिज्म। तो ये क्या है, इसको अच्छे से याद करना है, याद करके लिख के देखना है, अपनी वर्डिंग में लिखना है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स देना है और अपने मुस्तकबिल की तैयारी को जारी रखना है। अभी से पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब करेगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।